क्वेश्चन ले लो। कंसीडर logical address is of 29 bit, physical address is of 32 bit, and page size is कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, पेज साइज 8 kilobyte. Page size is 8 kilobyte. Then what will be the page table size? करो फटाफट, फटाफट से करो। Give me the answer in bits. फटाफट, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए यार। अरे इतनी देर नहीं लगाओगे भाई, कैसा कर रहे हो? डोंट नो, आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, बट समझते हैं क्या हो सकता है। चलो देखते हैं।
सर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो व्हाट विल बी पेज टेबल साइज? सर पेज टेबल साइज इज नथिंग बट नंबर ऑफ एंट्रीज into size of each entry. Now tell me, how many entries will be there in the page table? Number of entries in the page table is same as number of pages in logical address space मल्टीप्लाई बाय, सुनो, अगर एंट्री की साइज गिवन होती तो ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं गिवन है, बाय डिफॉल्ट एंट्री साइज क्या होगी? By default entry size equals to number of bits in frame number. Why? Because by default what do we store? By default क्या स्टोर करते हैं पेज टेबल एंट्री में? By default पेज टेबल एंट्री में, by default पेज टेबल एंट्री में फ्रेम नंबर ही तो स्टोर किया जाता है। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो मैं फ्रेम नंबर की बात करूंगा। तो मुझे यही दो चीजें तो चाहिए। क्या ये दोनों आपको निकालना नहीं आता है यहां से? देखो, नंबर ऑफ पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज नथिंग बट साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय पेज साइज, डिवाइड बाय page size. This will give you the number of pages. So how many pages? Logical address space. If logical address is of 29 bit, then the logical address space will be 2 raised power 29 byte, divided by page size is given as 8 kilobyte. Solve this. 2 raised power 29 and 2 raised power 13 is 2 raised power 16. So there will be 2 raised power 16 pages. That is, there will be 2 raised power 16 entries. There will be 2 raised power 16 entries in the page table. Now what is the size of each entry? So we are actually looking for frame number. Frame number is of how many bits? So let's see, number of frames are how many? First of all, number of frames, if you try to calculate number of bits in the frame number, so first you need to know the number of frames. Number of frames is nothing but total size of physical address space divided by the size of each frame, which is same as page size. Size of each frame is same as page size. So what is physical address space? 2 raised power 32 byte divided by page size is given as 8 kilobyte. So 2 raised power 32 divided by 2 raised power 13, that is 2 raised power 19 frames. If there are 2 raised power 19 frames, therefore frame number is of 19 bit. Yes, frame number will be of 19 bit. क्लियर है सबको? सो यहां पर ये वाली जो इंफॉर्मेशन आएगी, दिस विल बी ऑफ 19 बिट. सो व्हाट विल बी द आंसर? ट्वेल्व 1216, ये है ना, 1216 किलो बिट. कैन आई डिवाइड इट बाय it? Yes. $1,216 when divided by 2, this comes out at 152 kilobytes. क्लियर है सबको? क्लियर है कि सबको? ये 512 मेगाबाइट, 16 मेगाबाइट. सॉरी, मेगाबाइट नहीं,
किलोबाइट्स। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? भाई इतने अजीब अजीब से आंसर क्यों आए थे, पहले तो ये बताओ। रुचि, 512 मेगाबाइट कैसे, 512 मेगाबाइट कैसे आया? आकाश, 16 मेगाबाइट कैसे आया? अब जस्ट समझने की कोशिश करो आप क्या गलत किए हो। कुछ भी तो नहीं था। पेज टेबल साइज कुछ भी नहीं होता है। पेज टेबल साइज इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एंट्रीज एंड द साइज ऑफ ईच एंट्री। नंबर ऑफ एंट्रीज नथिंग बट द नंबर ऑफ पेजेस इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो वो आप लॉजिकल एड्रेस स्पेस के बेसिस पे और पेज साइज के बेसिस पे आपको मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस आए थे 2^16, तो इतनी एंट्रीज होंगी। बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज गिवन देन द साइज ऑफ ईच एंट्री will be nothing but equal to the number of bits in the frame number. Now, from here we come to know that the number of frames are 2 raised power 19, therefore frame number will be of 19 bit. Just multiply them and you will get your answer. This is the answer. This is in the bit. I have divided this 1216 by 8. Therefore, the answer will be 152 kilobytes. That's it. Let's take a new question. Consider फिजिकल एड्रेस स्पेस, इसको ले लेते हैं। कंसिडर फिजिकल एड्रेस स्पेस इज इक्वल्स टू के प्लस एल बाइट्स, और या फिजिकल एड्रेस स्पेस इज के प्लस एल बाइट्स, लॉजिकल एड्रेस is of m bits और कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। So let's have it as 2 raised power k plus l bytes. Physical address space is 2 raised power k plus l bytes. Logical address is of m bit and page size is of two raised power l bytes. Then पेज टेबल साइज। कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो यार, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ, किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है, मुझको नहीं पता।
2 raised power k आदर्श प्लस और मल्टीप्लिकेशन। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? गलत है भाई, आदर्श गलत है, अक्षत गलत है। करेक्ट प्रियंका। सॉरी मृत्युंजय। करेक्ट रुचि। नहीं गुलाम। क्या, कहा नींद विंद में हो क्या सारे के सारे लोग? ऐसे कैसे गलत कर सकते हो यार क्वेश्चन को? कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहा ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहा, क्या बदला? कैलकुलेशन भी खराब हो गई है तुम लोगों की। पेज टेबल साइज इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू एंट्री साइज। कुछ भी गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ एंट्रीज विल बी नंबर ऑफ पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर। चलो सबसे पहले तो दूसरे तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करो। हर बार आप डिवीजन करने बैठो जरूरी नहीं है। अगर फिजिकल एड्रेस 2 k+ L बाइट का है, फिजिकल एड्रेस स्पेस इतना है, तो फिजिकल एड्रेस k+ L बाइट का होगा। सुनना अभी, फिजिकल एड्रेस k+ L बाइट का होगा। नाउ अगर पेज साइज 2 L बाइट की है, इसका मतलब पेज ऑफसेट कितने बिट का होगा? पेज ऑफसेट विल बी ऑफ L बिट log of 2 L। सब लिखवाओगे तुम मुझसे? This will come out as L bits and this will be same as a frame offset because page offset and frame offset will be of same number of bits. The number of bits in the page offset as well as frame offset will be equal. So out of this k+ L bits, out of this k+ L bits are defined as page offset, page or frame offset. So how many bits are left? Sir, actually k bits are left. Sir, physical address is composed of what? Physical address is composed of frame number and page offset. So this many bits दिस दी अनदर रिप्रेजेंटेशन। हमेशा डिवीजन की टर्म में सोचो, ये जरूरी नहीं है। हमेशा डिवीजन की टर्म में सोचो, ये जरूरी नहीं है। ऐसे भी करना सीखो, क्वेश्चन ऐसे ही ज्यादा आसानी से सॉल्व होंगे, जल्दी सॉल्व होंगे। सो फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन था 2 k+ L बाइट का, तो मुझे पता था फिजिकल एड्रेस k+ L बिट का होगा। ये k+ L बिट के अंदर से मुझे पता था कि पेज साइज 2 L बाइट की है, इसका मतलब पेज ऑफसेट L बिट का होगा, इसका मतलब फ्रेम ऑफसेट भी L बिट का होगा। तो फिजिकल एड्रेस की MSB साइड की L बिट्स, फिजिकल एड्रेस की LSB साइड की L बिट्स फ्रेम ऑफसेट में चली जाएंगी, और जो बची हुई बिट्स हैं वो क्या बन जाएंगी? जो बची हुई बिट्स हैं वो फ्रेम नंबर की बिट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो जो k बिट है ये k बिट का आपका फ्रेम नंबर हो गया। तो आपको ये सेकंड वाली इंफॉर्मेशन पता चल गई। सर मुझे पता है दैट दिस वैल्यू विल बी k बिट्स, राइट? नाउ द ओनली थिंग व्हिच यू नीड टू चेक फॉर इज
नंबर ऑफ पेजेस इन दी लॉजिकल एड्रेस स्पेस। अगर आपको ये भी चेक करना है ना कि नंबर ऑफ पेजेस कैसे हैं, तो आप इसको भी लॉजिकल एड्रेस के फॉर्म में निकाल सकते हो। देखो, इसको भी आप डायग्राम की टर्म में सोच सकते हो। दिस इज योर लॉजिकल एड्रेस। व्हाट इज द साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस? द साइज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस इज m bit. That is, logical address is m bit wide. So this will get divided into two parts. What? Page number and page offset. Right? So we know page offset and frame offset is of same size. Therefore, L bits will go into the page offset. Therefore, page number will be of how many bits? Page number will be of m minus l bits. तो ये समझ में आता है, अगर पेज नंबर m माइनस एल बिट्स, अगर पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए m माइनस एल बिट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए m माइनस एल बिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेजेस will be 2 raised power m minus l. अगर 2 raised power m minus l पेजेस होते हैं तो पेज नंबर के लिए m minus l बिट, और अगर नंबर ऑफ बिट पता हो तो 2 raised power number of bits in the page number will give you the total number of pages. So these are the total number of pages. So you know 2 raised power m minus l pages are there in the logical address space. Therefore 2 raised power m minus l entries will be present in the page table and each entry will be of k bit. So this is your answer. क्या कहीं भी 2 की पावर k लगाए जा रहे हो? रूपम, ये क्या है? 2 raised power m प्लस k माइनस l माइनस 6 फिक्स कहाँ से आ गया? समझ ही नहीं आया। 6 कहाँ से आ गया भाई? कितने लोगों के आंसर गलत है पहले तो ये बताओ। आदर्श, आदर्श गलत था, अक्षत गलत था, प्रियंका के इंटू तुमने इधर की तरफ लिखा है, कॉमा लगा दिया, लेकिन तुम्हारा आंसर सही था। मृत्युंजय गलत, रुचि पहले तो आंसर सही था तुम्हारा, फिर अभी तुमने नया नया कुछ दिया है। गुलाम गलत, रूपम गलत, सेकंड में गुलाम का आंसर सही था, पहला नहीं। सर कैसे आया उसको? तनुजा क्या पूछना चाह रही हो कि कैसे आया? क्या कैसे आया मतलब कौन सी चीज के बारे में पूछ रहे हो कि कैसे आया? सर के कैसे आया उसको एक बार, एक के बिट से बी लिख दिया मैंने। के बिट से बी क्यों लिखा? बिट्स का बी लिख रहा था, गलत कर दिया। बेटा के कैसे आया? अरे फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट क्या है? फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट है एफ एंड डी, वेयर एफ इज द नंबर ऑफ, एफ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रेम नंबर एंड डी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रेम ऑफसेट। तो मुझे पेज ऑफसेट के लिए जितनी बिट होंगी उतनी ही बिट एग्जैक्टली फ्रेम ऑफसेट में जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ जो बिट्स थी फिजिकल एड्रेस की, उसके अंदर से जितनी बिट आपकी फ्रेम ऑफसेट में चली गई, उसके अलावा जितनी बिट्स बची हैं वो फिजिकल एड्रेस स्पेस के फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के काम में आएंगी। नहीं समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? तनुषा, किसने पूछा था? तनुजा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो उसको दूसरे तरीके से देखो। नाउ नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे निकालते हैं सर? सर मैंने इसीलिए बोला था डायरेक्ट विजुलाइज करने की कोशिश करो डायग्राम की फॉर्म में, आई मीन इस फॉर्मेट में, ताकि आसानी रहे चीजों को करने में। नंबर ऑफ फ्रेम्स आर नथिंग बट द फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय पेज साइज।
physical address space divided by page size. So physical address space is given as 2 raised to power k plus l bytes, and page size is given as 2 raised to power l bytes. Divide this to, so you will get the answer as 2 raised to power k bytes. सॉरी बाइट तो बचा ही नहीं, बाइट तो खत्म हो गया. सो यू विल गेट द आंसर इज 2 raised to power k. सो अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स k हैं, therefore फ्रेम नंबर इन बिट विल बी हाउ मेनी बिट्स? कल ही बताया था, फ्रेम नंबर इन बिट्स विल बी log ऑफ बेस 2. हर फ्रेम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितने बिट की जरूरत है, उतनी बिट्स होंगी आपके फ्रेम नंबर में. सो log ऑफ बेस 2 ऑफ नंबर ऑफ फ्रेम्स. लॉग के साथ खेलना सीखो. 2 की पावर लॉग की वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो 2 raised to power k, दैट इज k बिट. आपका जो फ्रेम नंबर है वो k बिट का होगा. तनुजा, गुलाम भूलना कोई आंसर नहीं है ना. भूल गए थे मतलब गलत है. अगर भूल गए थे मतलब आंसर गलत है. ऐसा थोड़ी होता कि भूल गए थे और गेट के एग्जाम में वापस आकर के बोलो कि भैया जरा आंसर की देना है, वापस से मुझे थोड़ा देर के लिए लॉगिन करने देना, मुझको सही करना है, कुछ याद आया है. ऐसा थोड़ी होता है. क्लियर है तनुजा? तो ये एक नॉर्मल अप्रोच है, ये एक नॉर्मल अप्रोच है. बट इंट्यूशन समझो कि अगर आपके पास लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के फॉर्मेट हैं तो कुछ बिट्स पेज नंबर को रिप्रेजेंट करती है कि पेज नंबर कितने बिट का होगा. तो अगर आपको ये पता है कि पेज नंबर कितने बिट का है तो आप क्या क्या बता सकते हो? टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं. अगर आपको एम बिट के अंदर नंबर ऑफ पेजेस पता है तो जो रिमेनिंग बिट है वो आपको पेज ऑफसेट दे देगी. अगर आपको पेज ऑफसेट के अंदर कितने बिट्स हैं अगर ये पता है, अगर आपको ये पता हो कि पेज ऑफसेट के अंदर कितनी बिट्स हैं, तो आपको एक्चुअल में पेज साइज पता है. अगर आपको पेज ऑफसेट के अंदर कितनी बिट्स हैं ये पता है तो आपको पेज साइज पता है. अगर आपसे पूछो व्हाट विल बी पेज साइज, सर पेज साइज इज नथिंग बट 2 raised to power नंबर ऑफ बिट्स इन पेज ऑफसेट. बाइट, इतने बाइट का आपका पेज होगा. अगर आपको नंबर ऑफ बिट्स पता हो पेज ऑफसेट में तो ये सारी चीजें एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए समझो. तनुजा, यहां पर फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया गया है. अगर फिजिकल एड्रेस गिवन होता फिर कल वाली क्लासेस सब उड़ा दिए तुम लोगों ने. अगर फिजिकल एड्रेस n बिट का है तो फिजिकल एड्रेस स्पेस 2 raised to power n बाइट का होता. लेकिन यहां पर सीधे सीधे फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया गया है. इसका मतलब आप फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय पेज साइज से सीधे सीधे नंबर ऑफ फ्रेम्स निकाल सकते हो. तनु लिखा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ बिट्स इन दी लॉजिकल एड्रेस, और ये रिप्रेजेंट कर रही है टोटल साइज ऑफ दी फिजिकल एड्रेस स्पेस. दोनों वैल्यूज, दोनों की रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है. यहां पर अरे ये फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस नहीं है, ये लॉजिकल एड्रेस है. इसलिए लॉजिकल एड्रेस स्पेस के लिए मुझे उसको मल्टीप्लाई, उसको 2 raised to power उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके सर, नाउ क्लियर. बेटा पेजिंग के क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं, अभी मत करो पेजिंग के क्वेश्चन में. इतने छोटे से कॉन्सेप्ट में पेजिंग का क्वेश्चन बनाने का फायदा ही नहीं है. अभी हम और कुछ समझेंगे, उसके बाद पेजिंग के क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज परफॉर्मेंस.
now let main memory access time equals to m. लेट्स एज्यूम कि मेन मेमोरी को एक्सेस करने में m टाइम यूनिट लगते हैं. लेट्स एज्यूम कि मेन मेमोरी को एक्सेस करने में m टाइम यूनिट लगता है. सो देन effective memory access time with a simple paging will be what? Tell me. अगर मेन मेमोरी को एक्सेस करने में m टाइम लगता है, क्या पूछा मैंने? अगर मेन मेमोरी को एक्सेस करने में m टाइम लगता है तो इफेक्टिवली मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगेगा सीपीयू को किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग वो कितना लगेगा? कितना टाइम लगेगा? सर, what do you mean by asking the effective memory access time? मेन मेमोरी को एक बार एक्सेस करने में जो टाइम लगता है वो m है. मेन मेमोरी को एक बार एक्सेस करने में जो टाइम लगता है वो m है. लेकिन इफेक्टिवली मेमोरी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा? समझना बात को. सीपीयू जनरेट करेगा एक लॉजिकल एड्रेस. सीपीयू जनरेट करेगा एक लॉजिकल एड्रेस और आपको उस लॉजिकल एड्रेस के बेसिस पे मेमोरी को एक्सेस करना है. सीपीयू ने जनरेट किया एक लॉजिकल एड्रेस और आपको उस लॉजिकल एड्रेस के बेसिस पे मेमोरी को फिजिकल एड्रेस स्पेस को मेन मेमोरी को एक्सेस करना है. लेकिन आप उस लॉजिकल एड्रेस के थ्रू डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्चुअल में मेन मेमोरी की किसी सेल का एड्रेस है ही नहीं. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको उस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा. समझ गए? तो उस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको एक्सेस करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी पेज टेबल. और पेज टेबल कहाँ स्टोर्ड है? सर, पेज टेबल स्टोर्ड है मेन मेमोरी में. तो सबसे पहले m टाइम लगेगा टू एक्सेस द पेज टेबल. सबसे पहले यू विल रिक्वायर m टाइम टू एक्सेस दी पेज टेबल. इस पेज टेबल को एक्सेस करने के बाद आपका लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट होगा. इसके बाद आपका फिजिकल लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट होगा और फाइनली आप मेन मेमोरी को एक्सेस करोगे. सो दिस इज टू एक्सेस मेन मेमोरी with respect to physical address obtained after accessing the page table. ये जनरल है. सो जो टोटल टाइम लगेगा इफेक्टिवली जो आपको टाइम लगेगा मेमोरी को एक्सेस करने में वो 2m टाइम लगेगा क्योंकि सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया है वो लॉजिकल एड्रेस है. आप उसके बेसिस पे सीधे सीधे मेन मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते. वन टाइम पेज टेबल एक्सेस, वन टाइम करेक्ट रुचि, बट सेकंड टाइम उसको ये मत बोलो कि पेज एक्सेस, उसको बोलो फ्रेम एक्सेस. राइट? पेज टेबल को एक्सेस करने का टाइम प्लस फिजिकल एड्रेस के थ्रू मेन मेमोरी में पेज एक्सेस करना. करेक्ट, राइट? सो effective memory access time is 2m. So let's try to understand. We already know that memory is a slow device. We already know that processor के point of view से memory is a slow device. तो वैसे ही तो गला घुटा हुआ है मेन मेमोरी को एक्सेस करने के कारण. और अगर अब आपने पेज टेबल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तो इस पेज टेबल जो सिंपल पेजिंग है उस सिंपल पेजिंग के कॉन्सेप्ट में आपको 2 बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया है उसके रिस्पेक्ट में.
तो अब कॉन्सेप्ट आता है कि मैं इस इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को 2m से घटा करके रिड्यूस करके m के क्लोज लाना चाहता हूं, ठीक है। सो जस्ट नोट डाउन, to reduce this effective memory access time from 2m to closer to m. Concept of TLB. What is TLB? Translation look aside buffer is used. Concept of TLB is used. So the next thing is TLB, translation look aside buffer. So what is TLB? TLB is a hardware. TLB so is a hardware which is also known as cache. TLB is a small sized cache which is used for translating logical address into physical address. तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये एक्चुअल में आपका ऑन चिप कैशे है और ये ऑन चिप स्टोरेज डिवाइस है। इसके लिए मेन मेमोरी को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अलग फास्ट स्टोरेज डिवाइस है जिसका जो एक्सेस टाइम होगा वो सिग्निफिकेंटली बहुत कम होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट व्हाट हैपेंस इन द TLB. तो TLB के अंदर दो चीजें होंगी, पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। तो जो रिसेंटली एक्सेस्ड पेजेस हैं, जो रिसेंटली एक्सेस्ड पेजेस हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस के, उनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर है उसकी इंफॉर्मेशन TLB के अंदर स्टोर होगी। तो कैसे होगा, बात समझने की कोशिश करना। इनिशियली जब किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इनिशियली जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो ये TLB एम्प्टी होगी, तो ये TLB एम्प्टी होगी। जब आप पहली बार कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करोगे तो उस लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले आप TLB के अंदर ढूंढने जाओगे कि क्या इस लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो पेज नंबर है, क्या वो पेज नंबर किस फ्रेम नंबर पे स्टोर है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन TLB के अंदर स्टोर्ड है। इनिशियली
टीएलबी एम्प्टी होगी, इसलिए आपको पता चलेगा कि नहीं, वो वाला पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर की इंफॉर्मेशन टीएलबी में नहीं है। तो मैं किसके पास जाऊंगा, फिर मैं पेज टेबल के पास जाऊंगा, क्योंकि पेज टेबल मुझे हमेशा बता सकती है कि आपका कौन सा वाला पेज नंबर मेमोरी के किस फ्रेम नंबर पे स्टोर्ड है। तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि पेज नंबर जिस भी एड्रेस के लिए मैंने एक्सेस किया है, जिस भी एड्रेस के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो जिस पेज नंबर में बिलोंग करता है, वो वाला पेज मेन मेमोरी के किस फ्रेम में है। तो मैं उसके बाद मेन मेमोरी को तो एक्सेस कर ही लूंगा, लेकिन साथ ही साथ में पेज नंबर, वो कौन सा पेज नंबर था और उसके करस्पॉन्डिंग क्या फ्रेम नंबर था, उसकी एंट्री कहां डाल दूंगा, टीएलबी के अंदर। सॉरी। Satyabrata Sahu, is there any previous recorded video PDF available? No. पता नहीं पूछे क्या हो, लेकिन जो भी है तुम समझ में आ रहा है कि क्या पूछ रहे हो, वो चीज नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, टीएलबी के अंदर दो चीजें होंगी, पेज नंबर एंड दी करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर। समझे बात को? तो ये वाली स्टोरी है। पिक्चर समझ में आई होगा क्या, टीएलबी के अंदर एंट्रीज कैसे आएंगी, ये समझ में आया। तो समझते हैं क्या होगा। नेक्स्ट सिंपल पेजिंग विथ टीएलबी। तो अभी तक हमने सिर्फ सिंपल पेजिंग पढ़ा था, अब हम देख रहे हैं कि टीएलबी के साथ कैसे काम होगा। सुना, यह है आपका सीपीयू। सीपीयू जनरेट करेगा एक लॉजिकल एड्रेस, उस लॉजिकल एड्रेस का डिवीजन होगा टू पार्ट्स में। डायग्राम से ही समझना पड़ेगा, लिखना नहीं है, इसलिए जब डायग्राम के साथ साथ जो बोल रहा हूं उसको सुनो, ड्रॉ चाहे तो बाद में कर लेना। ठीक है, सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, उस लॉजिकल एड्रेस में दो चीजें होंगी, क्या, पेज नंबर, वो पेज नंबर जिसमें ये लॉजिकल एड्रेस बिलोंग करता है, वो पेज नंबर क्या है, एंड उस पेज के अंदर आप कौन सी सेल को एक्सेस करना चाहते हो। ये दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी लॉजिकल एड्रेस में। जनरली क्या होता, जनरली क्या होता, जनरली ये होता कि मैं इस पेज नंबर के बेसिस पे, मैं जनरली इस पेज नंबर के बेसिस पे पेज टेबल को एक्सेस करता। और इस पेज टेबल को एक्सेस करने से मुझे फ्रेम नंबर मिल जाता। लेकिन अभी क्या होगा, सबसे पहले अभी मैं सीधे सीधे पेज टेबल के पास नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा मेरी टीएलबी के पास।
सुनना होगा क्या, मैं इस पेज नंबर के बेसिस पे सबसे पहले टीएलबी में सर्च करूंगा, और ये इंडेक्स नहीं है, इसलिए यहां से आप इसको ऐसे बोलो, ऐसे सर्च into TLB for page number of लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो आप इस TLB के अंदर सर्च करोगे कि इस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई एंट्री है या नहीं। इसका मतलब ये पेज नंबर P, यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज हैं उसमें कहीं अवेलेबल है या नहीं, राइट। तो यहां से दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका ये ऑपरेशन हिट होगा या ये ऑपरेशन मिस होगा। इसका मतलब अगर पेज नंबर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो ऑपरेशन होगा हिट, ठीक है। तो हिट, सो व्हाट डू आई मीन, हिट से मेरा मतलब है इंफॉर्मेशन और एंट्री there exists an entry into the TLB corresponding to that page number of logical address space। सुना, अगर आपको यहां पर कोई एंट्री मिल गई, अगर आपको कोई एंट्री मिल गई जिसके अंदर पेज नंबर P है, तो इस पेज नंबर P के करस्पॉन्डिंग यहां पर एक फ्रेम नंबर लिखा होगा कि ये वाला पेज नंबर मेन मेमोरी के किस फ्रेम में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां से आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। तो आपको हिट के बाद क्या मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ हिट ऑपरेशन यू विल गेट अ फ्रेम नंबर। अगर आपका ऑपरेशन हिट हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रेम नंबर। और एक चीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, दैट इज ऑफसेट। अगर मैं इस ऑफसेट को अपेंड कर दूं विद द फ्रेम नंबर जो आपको टीएलबी से मिला है, तो आपको एक्चुअल में क्या मिल गया, फिजिकल एड्रेस मिल गया। यस और नो। सो दिस व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, कि सबसे पहले आप उस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग टीएलबी में सर्च करोगे, और ये सर्च किस तरीके से परफॉर्म होगी ये डिपेंड करता है कि आपकी टीएलबी कैसी है, ठीक है। द सर्च विल इवेंचुअली डिपेंड अपॉन द टीएलबी। जनरली translation look aside buffer uses the concept of associative memory। anyone knows the concept of associative memory, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी? सुना है कभी? मैं डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे भी नहीं करूंगा, सीओए में भी नहीं करूंगा, दैट्स जस्ट अ टर्म। लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि उस चीज का मतलब क्या है। आई एम नॉट सेइंग फुल मैपिंग, आई एम नॉट सेइंग एसोसिएटिव मैपिंग, आई एम सेइंग एसोसिएटिव मेमोरी। डू यू गाइज नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी? एसोसिएटिव मेमोरी का मतलब यह है कि जो सर्चिंग होती है वो सर्चिंग सारी की सारी सेल में, आपकी मेमोरी में जितनी सेल्स हैं उन सारी की सारी सेल में एक साथ पैरेलली सर्च होता है विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट विच इज बीइंग सर्च्ड, ठीक है। तो नहीं भी पता है तो बताऊंगा नहीं, टेंशन मत लो। एसोसिएटिव मेमोरी है तो टीएलबी इज, सो यू कैन नोट डाउन, इन जनरल
TLB is implemented using the concept of associative memory. समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जा करके पढ़ना कि एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है, ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी search is performed in all these cells parallelly based on content. Therefore, also known as content addressable memory. तो आपकी जो टीएलबी है वो किस टाइप की मेमोरी होगी? एक एसोसिएटिव मेमोरी होगी इन जनरल. उस एसोसिएटिव मेमोरी में आप सारे के सारे सेल्स में पैरेलली सर्च ऑपरेशन शुरू कर सकते हो कि पी इसमें है क्या, पी इसमें है क्या, पी इसमें है क्या, पी इसमें है क्या, और धीमे धीमे ये सर्च कन्फाइंड होती चली जाएगी, धीमे धीमे ये सर्च कन्फाइंड होती चली जाएगी. सो बेसिकली एक पी नंबर होगा, लेट्स अज्यूम कि एड्रेस है 0010101, ठीक है. तो मैं सबसे पहले देखूंगा 0, तो सबसे पहले मैं पहले 0 को मैप करने की कोशिश करूंगा. तो इनमें जहां जहां पर पहला वाला बिट 0 होगा, सिर्फ अब नेक्स्ट टाइम जो सर्च होगी वो सिर्फ उन सेल में होगी जिसमें पहला वाला ये 0 था. फिर नेक्स्ट वाला 0, तो अब ये और सर्च और कन्फाइंड हो जाएगी. अब सिर्फ उन सेल्स के अंदर सर्च करना है जिनके अंदर पहली 2 बिट 0 थी. फिर और कन्फाइंड हो जाएगी, सिर्फ उन सेल्स के अंदर सर्च करना है जिनके अंदर पहली 3 बिट 0 थी. उसके बाद उन सेल्स के अंदर सर्च करना है जिनके अंदर पहली 3 बिट 0 थी और चौथी बिट 1 थी, एंड सो ऑन. तो जैसे जैसे ये सर्च आगे चलती जाएगी वैसे वैसे आपकी सर्च कन्फाइंड होती चली जाएगी. शुरुआत में सारे के सारे सेल्स के अंदर पैरेलली सर्च होगा. फिर जहां पर पहली बिट मैच करेगी सब उन सेल्स के अंदर नेक्स्ट बिट के लिए सर्च होगा. जहां जहां पर पहली और दूसरी बिट दोनों मैच कर गई होंगी सिर्फ उन्हीं सेल्स में थर्ड बिट के लिए सर्च होगा, एंड सो ऑन. एंड फाइनली पूरा का पूरा सर्च कंप्लीट हो जाएगा. अगर कोई भी ऐसी सेल है जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा पेज नंबर एग्जिस्ट करता था तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर आप एक्सेस कर लोगे. आपको फ्रेम नंबर मिल गया, फ्रेम नंबर के साथ ऑफसेट को मर्ज कर दो, यू हैव गॉट योर फिजिकल एड्रेस. क्लियर? तो ये वाली कौन सी सिचुएशन है? सबसे पहले मैं लॉजिकल एड्रेस को पेज नंबर और पेज ऑफसेट में डिवाइड करूंगा. पेज नंबर के बेसिस पे उस पेज नंबर को टीएलबी के अंदर सर्च करूंगा. अगर वो पेज नंबर टीएलबी में हिट है, इसका मतलब उस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको एंट्री मिल गई टीएलबी के अंदर, तो वहां से आपको फ्रेम नंबर मिल जाएगा और दोनों को मिला करके आपको क्या मिल जाएगा? फ्रेम ऑफसेट मिल जाएगा. बट इन केस अगर ये ऑपरेशन मिस है, अगर टीएलबी के अंदर ये ऑपरेशन मिस है, इसका मतलब आप जिस पेज नंबर को सर्च कर रहे थे उस पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको एंट्री टीएलबी में नहीं मिली, देन आप क्या करोगे? नेक्स्ट चीज जो होगी वो होगी दिस इज 0 1 अप टू p-1 होगा और ये है आपका पेज नंबर p. ये है आपका पेज नंबर p. तो आप पेज टेबल के अंदर इस बेस्ड ऑन दिस पेज नंबर एक्सेस करोगे और यहां से आपको मिलेगा सर, यहां से आपको मिलेगा फ्रेम नंबर. ठीक है, तो इस फ्रेम नंबर को, आपको ये जो फ्रेम नंबर मिला है, जब आप इस फ्रेम नंबर को अवेलेबल था, जब उस ऑफसेट को आप वहां पर मैच करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा. क्लियर? तो
based on physical address obtained, physical address space is accessed. क्लियर? समझ में आया क्या कहानी? तो ये एक हार्डवेयर है, ये एक ऑन चिप हार्डवेयर है। इसका मतलब ये जो कैशे अवेलेबल है ये मेन मेमोरी में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये इंफॉर्मेशन को भी मेन मेमोरी में स्टोर करवा दूं, पेज टेबल कहाँ स्टोर्ड है? पेज टेबल्स आर स्टोर्ड इन दी मेन मेमोरी, वेयरएज टीएलबी इज एक्चुअली ऑन चिप मेमोरी, इज एन ऑन चिप मेमोरी। इसका मतलब ये वाला जो मेमोरी स्पेस है आपके पास सीपीयू के अंदर ही अवेलेबल होगा, आई मीन प्रोसेसर के अंदर ही अवेलेबल होगा, और आपकी सर्चिंग ऑन चिप होगी। ये जो मेन मेमोरी है ये आपके सीपीयू से डिफरेंट है, आपको इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए बसेस का यूज करना पड़ता है। इस टीएलबी के लिए आपको सिस्टम बस का यूज नहीं करना पड़ेगा, इंटरनल बस को एक्सेस करने से टीएलबी की एक्सेस हो सकती है। क्लियर है? यहां पर किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो ताकि मैं आगे जा सकूं। So page table will be accessed only when search is a miss in TLB. So you can see, you can note this down. सर्च इज अ मिस मीन्स वो आपका जिस पेज नंबर को आप सर्च कर रहे थे वो पेज नंबर आपको टीएलबी में नहीं मिला। अब बात समझना, टीएलबी के अंदर एंट्री गई कैसे होंगी? सुन लो, वही स्टोरी वापस बता रहा हूं। टीएलबी के अंदर एंट्री गई कैसे होंगी? शुरुआत में टीएलबी एम्प्टी होगी, आपने पहली बार टीएलबी के अंदर किसी पेज नंबर को ढूंढा होगा, वो नहीं मिला तो आपने पेज टेबल को एक्सेस किया, पेज टेबल से आपको फ्रेम नंबर मिला। जैसे ही आपको ये फ्रेम नंबर मिला, आपने उस पेज नंबर की और फ्रेम नंबर की एक एंट्री बना दी टीएलबी में। जैसे आपने पहली बार एक्सेस किया तो आपने पहली बार जब आपको टीएलबी में मिला, टीएलबी में मिस मिला, तो किस पेज नंबर के लिए मिस मिला था और उसके करस्पॉन्डिंग पेज टेबल ने क्या फ्रेम नंबर दिया है, इन दोनों की एंट्री आपने बना दी किसमें? टीएलबी में। क्यों? ताकि नेक्स्ट टाइम, क्यों बना दी? ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सीपीयू सेम पेज का कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सीपीयू सेम पेज का कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करे तो नेक्स्ट टाइम मुझे उस पेज नंबर की करस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रेम नंबर है इसकी इंफॉर्मेशन मुझको टीएलबी में ही मिल जाए। समझ गए बात को? अब एक चीज समझना, क्या हर प्रोसेस की अपनी, सर टीएलबी एक्सेस टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा ना? हाँ बिल्कुल गिवन होगा। टीएलबी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है वो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और अगर टीएलबी का यूज हुआ है और टीएलबी का एक्सेस टाइम गिवन नहीं है, अगर टीएलबी का यूज हुआ है और टीएलबी का एक्सेस टाइम गिवन नहीं है तो टीएलबी एक्सेस टाइम विल बी कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। अगर टीएलबी वर्ड का यूज हुआ है और टीएलबी का एक्सेस टाइम गिवन नहीं है तो टीएलबी का एक्सेस टाइम विल बी कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। क्लियर? सो या तो मैं क्या बोल रहा था, आपकी बहुत सारी प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस का अपना लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। इसका मतलब हर प्रोसेस का अपना, सुनना अच्छे से जो चीज बोल रहा हूं, हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल है। इसका मतलब हर प्रोसेस का ये जो पेज, लेट्स एज्यूम कि यहां पर पेज नंबर पी है, लेट्स एज्यूम कि यहां पर ये पेज नंबर पी है और फ्रेम नंबर एफ है, तो हर प्रोसेस का पेज नंबर पी फ्रेम नंबर एफ पे ही रखा हो ये जरूरी है क्या? हर प्रोसेस का पेज नंबर पी, और लेट्स एज्यूम कि यहां पर मैंने बोल दिया 0 और 1 ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप बोलोगे सर पी और एफ तो नंबर हैं और ये तो इस प्रोसेस के लिए सही है पी और एफ, तो मैं बोल रहा हूं अगर यहां पर ये वैल्यू बोल दो 0 और यहां पर बोल दिया है 2, तो हर प्रोसेस का पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 पे ही रखा हो ये जरूरी है क्या? क्या पूछा मैंने? हर प्रोसेस का पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 पे ही रखा हो ये जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है या नहीं?
नहीं जरूरी है ऑब्वियसली। अगर हर प्रोसेस का सेम पेज नंबर सेम फ्रेम नंबर पे रखा होता तो मुझे अलग अलग पेज टेबल ही मेंटेन नहीं करनी पड़ती, मुझे अलग अलग पेज टेबल ही मेंटेन नहीं करनी पड़ती। नाउ दिस दी कॉन्सेप्ट, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब क्या, प्रोसेस बदल गई। कॉन्टेक्स्ट स्विच याद करो, वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पुराने कॉन्सेप्ट में जाओ। कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ इसका मतलब सीपीयू पर जो प्रोसेस अब एग्जीक्यूट करेगी वो बदल गई। तो अगर कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्ट अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा तो अब जो टीएलबी की एंट्रीज पिछली प्रोसेस ने डाली होंगी टीएलबी में, अब वो वैलिड नहीं है। हाँ या ना। जब कोई प्रोसेस रन कर रही होगी, जब कोई प्रोसेस, लेट्स अज्यूम कि कोई प्रोसेस एक्स है, जब प्रोसेस एक्स रन करेगी तो वो धीमे धीमे जैसे जैसे पेज टेबल को एक्सेस करती जाएगी, वो धीमे धीमे टीएलबी में अपने पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या फ्रेम नंबर से उनकी एंट्री डालती चली जाएगी। हाँ या ना। तो जब प्रोसेस एक्स एग्जीक्यूट करेगी तो प्रोसेस एक्स टीएलबी में अपने पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन से फ्रेम नंबर है उनकी एंट्री डालेगी, और वो टीएलबी में सर्च करेगी। अगर वापस से किसी सेम पेज नंबर के लिए रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो उसको पता चल जाए कि ये किस फ्रेम नंबर में अवेलेबल है। बट अब मैं बोल रहा हूं, अगर प्रोसेस एक्स का कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है प्रोसेस वाई के साथ, तो अब प्रोसेस वाई के लिए ये जो एंट्रीज प्रोसेस एक्स ने टीएलबी में डाली थी, ये एंट्रीज तो वैलिड नहीं है। प्रोसेस एक्स ने जो एंट्रीज टीएलबी में डाली थी, ये वाली एंट्रीज तो प्रोसेस वाई के लिए वैलिड नहीं है। हाँ, इसका मतलब जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, इसका मतलब जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, आपको टीएलबी एंट्रीज को फ्लश आउट करने की जरूरत है। दोज एंट्रीज विल बी नो लॉन्गर वैलिड ऑन आफ्टर कॉन्टेक्स्ट स्विच। यस और नो? इतना समझ में आया कि जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा तब पेज टेबल बदलेगी। इसका मतलब कौन सा पेज नंबर किस फ्रेम नंबर पे है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी नो लॉन्गर वैलिड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब जब जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा आपको टीएलबी एंट्रीज को फ्लश आउट करने की जरूरत है। सो यू कैन नोट दिस डाउन, नोट। whenever context switch or whenever context switching takes place, operating system will flush out all the entries of TLB as those entries of TLB need not be correct in context of new process. In context of new process scheduled on the CPU. तो दिस इज इट। समझने की कोशिश करते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या देखा हमने, अगर मैं टीएलबी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता हूं, अगर मैं टीएलबी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता हूं तो इफेक्टिवली मेन मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगता था वो 2M लगता था विद सिंपल पेजिंग। नाउ लेट main memory access time is equals to M
TLB access time is, let's say, so any value C. So C is comparatively very, very less than M. TLB hit ratio is equals to X. Therefore, memory access time with simple paging and TLB will be equals to what? Give me the expression. क्या होगा इसका एक्सप्रेशन? प्रोसेस को समझो, यू नो द आंसर. प्रोसेस को समझो एंड यू नो द आंसर. तो अगर कुछ लोगों को नहीं पता है, तो व्हाट डू आई मीन बाय हिट रेशियो? इसका मतलब दी फ्रैक्शन विथ विच एन एंट्री विल बी हिट और द इंफॉर्मेशन विल बी हिट इन दी TLB. इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि हिट रेशियो इज 0.6, अगर मैं बोल रहा हूं हिट रेशियो इज 0.6, सो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जब मैं TLB के अंदर सर्च करने जा रहा हूं उसमें से 60% ऑफ टाइम मुझको TLB के अंदर वो एंट्री मिल जा रही है, लेकिन सिर्फ 40% ऐसा होगा कि मुझको TLB में वो एंट्री नहीं मिलेगी. तो अगर ये है दैट TLB हिट रेशियो इज इक्वल्स टू X, देयरफॉर TLB मिस रेशियो विल बी व्हाट? Will be 1 minus X, because either it will be a hit in the TLB or a miss in the TLB. What else? So let's go now. Then effective memory access time will be any expression? Sorry, मृत्युंजय गलत है. करेक्ट आदर्श. रुचि, आपने उसको X को H मान लिया, कोई बात नहीं. बट आपका जो सेकंड पार्ट है वो गलत है. आई मीन करेक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो आपका सेकंड पार्ट गलत है. समझ लो बात को. देखो कहानी क्या है, आप जाओगे TLB के अंदर सर्च करने, तो विथ रेट X द सर्च will be hit in the TLB. The search will be hit in the TLB. So if it is a hit in the TLB, then you have already searched in the TLB. इसका मतलब आप ऑलरेडी सर्च करने में कितना टाइम लगा चुके हो? आप ऑलरेडी C टाइम लगा चुके हो TLB को एक्सेस करने में. और इस C टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि फ्रेम नंबर क्या है. इस C टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि फ्रेम नंबर क्या है. तो उस फ्रेम नंबर के पता चलने के बाद आप एक्चुअल में वो जो फ्रेम नंबर है उसको ऑफसेट के साथ मर्ज करके और फिजिकल एड्रेस स्पेस को एक्सेस भी तो करोगे. इसका मतलब C टाइम में आपको लॉजिकल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन हो जाएगा. इफ इट इज अ हिट, then with this fraction, if it is a hit, then C टाइम में आपका लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाएगा. लेकिन अल्टीमेटली M time will be required, M amount of time will be required to access the physical address space based on that physical address obtained from the TLB. Now, but if it is a miss in the TLB, so with rate 1 minus X, it will be miss in the TLB. But by the time you will come to know that operation is a miss in the TLB, by the time you will come to know that operation is a miss in the TLB, you have already spent C amount of time looking into TLB. तो आपका इस रेट से भी C टाइम लगा और बाद में इस रेट से C टाइम लगा, लेकिन उस C टाइम में आपको फिजिकल एड्रेस मिल गया, तो आपने M टाइम में फिजिकल एड्रेस स्पेस को एक्सेस कर लिया. इस रेट में भी आपने
क्या टीएलबी को एक्सेस तो किया ही था, लेकिन सी टाइम के बाद आपको पता चला कि अरे ये वाला जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस का पेज है, इसके करस्पॉन्डिंग तो फ्रेम नंबर टीएलबी में है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, अब अगर टीएलबी में नहीं है तो पेज टेबल को एक्सेस करोगे, अगर टीएलबी में नहीं है तो पेज टेबल को एक्सेस करोगे। पेज टेबल को एक्सेस करने से हमेशा हमको फिजिकल एड्रेस की या फिर हमेशा हमको फ्रेम नंबर मिल जाएगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कल एक चीज बोली थी कि सिंपल पेजिंग में हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सीपीयू सिर्फ उन्हीं पेजेस ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस को रेफर कर रहा है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सीपीयू सिर्फ उन्हीं पेजेस ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस को रेफर कर रहा है जो मेन मेमोरी में अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो वर्चुअल मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसका मतलब मुझे सेकेंडरी मेमोरी से पेज को लेकर के आना पड़ेगा, और इसको बोलता हूं पेज फॉल्ट सर्विसिंग। पेज फॉल्ट सर्विसिंग, दैट इज व्हेन अ पेज is not available in the memory, then it is brought from the secondary memory into the main memory and then it is accessed from the main memory. So that's a different story, बाद में देखेंगे। बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि डेफिनेटली हमारे सीपीयू ने जो पेज रेफर किया है वो मेन मेमोरी में अवेलेबल है। इसका मतलब पेज टेबल से उस पेज नंबर का जो फ्रेम नंबर है वो मिल जाएगा। तो इस एम टाइम में मैं पेज टेबल को एक्सेस कर पाऊंगा, यहां से मुझे फिजिकल एड्रेस मिलेगा, और फाइनली फिर एम टाइम में मैं फिजिकल एड्रेस स्पेस को एक्सेस करूंगा बेस्ड ऑन दी फिजिकल एड्रेस। सो दिस इज दी वैल्यू। सो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विल बी x इंटू सी प्लस एम प्लस 1 माइनस एक्स इंटू सी प्लस 2m। आई होप दिस गुड इनफ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको ये इक्वेशन? तो अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, इससे आपकी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम रिड्यूस हो जाएगा। लेट मेन मेमोरी एक्सेस टाइम $100 millisecond TLB एक्सेस टाइम। इसका मतलब TLB में सर्च करने में जो टाइम लग रहा है that is only 10 millisecond. It is 10 times faster compared to main memory, and TLB hit rate is 90%. Then effective memory access time will be what? So, sir, effective memory access time is nothing, but the rate with which it will be a hit is 0.9. So with rate, that is with fraction 0.9, the operation will be hit in the TLB. In that case, 10 nanosecond will be required, 10 millisecond will be required to access the TLB, and in that you will get the physical address. Then 100 millisecond will be required to access the physical address space. Now with rate 0.1, so very rarely this operation will be missed in the TLB. In that case, you have already spent 10 millisecond looking into the TLB and you came to know that operation is a miss in the TLB. Then you will require 100 millisecond to access the page table. From there you will get the physical address, and then you will require 100 millisecond to solve the equation. So this is nothing but this will come out as 120 मिलीसेकंड। तो अगर मैं TLB का यूज नहीं करता, तो इफेक्टिवली इस मेमोरी लेटेंसी के साथ
मुझे मेन मेमोरी को एक्सेस करने में जो इफेक्टिव टाइम लगता है या इफेक्टिवली जो मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम लगता है सीपीयू के रिस्पेक्ट में, वो 200 मिलीसेकंड का लगता, लेकिन अभी वो 200 मिलीसेकंड से रिड्यूस होकर के सिर्फ 120 मिलीसेकंड हो गया है। ठीक है, इससे लिखते लिखते मुझे कुछ याद आया कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया था। मैं कर देता हूँ कभी कभी। हाँ नहीं, सही लिखा था, फ्रॉम 2m टू क्लोजर टू m। क्लियर है? सिंपल कॉन्सेप्ट। सो नाउ वी नो दैट यस, अगर मैं पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, अगर मैं पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं तो मुझे 2 बार मेन मेमोरी को एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है इन ऑर्डर टू एक्सेस दी मेमोरी बेस्ड ऑन दी लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय दी सीपीयू। तो हमने बोला ऐसा करूंगा तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या इसको कम किया जा सकता है? तो एक हार्डवेयर सपोर्ट है, दैट इज टीएलबी। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्वेश्चन के साथ में डिस्कशन कर लेंगे। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस के साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। अभी मैंने आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है, अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है कि टीएलबी इज अ स्मॉल साइज्ड कैशे which is used for translating the logical address into physical address। तो ये जो TLB है, इस TLB के अंदर अभी तक मैंने ये बोला है कि दिस TLB will be in general, और यही होगा 99% केसेस का, 99% केसेस में आपसे वो इस बारे में बात ही नहीं करेगा कि टीएलबी के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रही है, वो आपसे ये बोलेगा ही नहीं। वो सिर्फ आपको टीएलबी का एक्सेस टाइम दे देगा कि टीएलबी से डेटा को एक्सेस करने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी भी हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते कि हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि टीएलबी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी। टीएलबी के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी दैट अ पर्टिकुलर पेज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज प्रेजेंट इन विच फ्रेम ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस। इट कंटेन्स only two information that a particular page of logical address space is present into which page of which frame of physical address space। But because the size of this TLB is not as large as, because the size of this TLB is not as large as the number of pages in the logical address space, therefore this TLB will not be able to contain all the informations, that is the information related to all the pages in it, right? तो शुरुआत में तो ये वैसे ही, शुरुआत में तो मैं जवाब नहीं दूंगा गुलाम तुम्हारी बात का, क्योंकि तुम फालतू की बात कर रहे हो। मैं जब तुमसे बोल चुका हूं कि पेज फॉल्ट वाला काम बाद में होगा, तो जबरदस्ती की बात मत करो, है ना? हाँ, तो क्या बोला, सारी के सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन टीएलबी में हो ये जरूरी नहीं है। टीएलबी का हिट रेट जैसे जैसे प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट करती जाएगी, जैसे जैसे प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट करती जाएगी, वैसे वैसे उसके लॉजिकल एड्रेस के पेजेस के करस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर हैं वो धीमे धीमे टीएलबी में जाकर के स्टोर होते चले जाएंगे, और ये वाला काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा ऑन दी बैकग्राउंड। जैसे जैसे आपने किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट किया, पेज नंबर पी के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन टीएलबी में नहीं थी, तो पेज टेबल को एक्सेस किया, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने यहाँ डाल दिया। अब जो टीएलबी के अंदर सर्च हो रही है वो उसका हमने बोला है कि हम बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि टीएलबी इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी, दैट इज सारे के सारे सेल के अंदर साइमल्टेनियस सर्च होगा। लेकिन जैसे मैं सीओए के अंदर मेन मेमोरी के कंटेंट को कैशे में स्टोर कराने के लिए 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज कर सकता था। कौन कौन से? फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। सो फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग एक्चुअली यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। उसके अलावा जो 2 और कॉन्सेप्ट थे कि या तो मैं डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता था, या तो मैं डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता था, या तो मैं सेट एसोसिएटिव का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता था। तो वो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर टीएलबी के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो सकता है, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर टीएलबी के अंदर भी इंप्लीमेंट हो सकता है कि जाकर के सारे सेल में एक साथ क्यों सर्च कर रहे हो, जाकर के सारे के सारे सेल में एक साथ क्यों सर्च कर रहे हो। मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं कि अगर आप पेज P0 की बात कर रहे हो तो पेज P0 आपकी सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन ऑफ टैग में हो सकता है, टीएलबी में हो सकता है। पेज 4 भी आपका सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन ऑफ टैग में हो सकता है, लाइन ऑफ टीएलबी में हो सकता है। तो अगर आपको P0 या P4 पेज के लिए सर्च करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के करस्पॉन्डिंग टीएलबी की जो एंट्री है उसको सर्च करो, क्योंकि कहीं और आपका P0 और P4 हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। जिन लोगों ने सीओए नहीं पढ़ा है उनको
परेशानी ना हो, इसलिए अभी इस चीज का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब सीओए पढ़ लोगे तो इसके बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप समझ जाओगे जब नेक्स्ट टाइम इस चीज को देखोगे कि टीएलबी के अंदर जो एंट्रीज हैं वो या तो एसोसिएटिव मेमोरी, आपकी टीएलबी को एसोसिएटिव मेमोरी के कॉन्सेप्ट में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, या तो आप अपने टीएलबी को डायरेक्ट मैपिंग का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो, या तो टीएलबी को सेट एसोसिएटिव मैपिंग का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो, जस्ट लाइक इट विल हैपन in the case of just like it will happen in the case of cache and main memory in terms of COA. So TLB is also a cache, वही तो बोला है हमने, TLB है क्या, TLB is also a cache। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं भैया, स्मॉल साइज कैशे, तो इसके भी हम तीनों में से किसी भी एक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो और कुछ चीजें भी आ जाएंगी टीएलबी के साथ साथ। अब आ समझना, टीएलबी के अंदर बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं, तो टीएलबी की कुछ एंट्रीज वैलिड होंगी, कुछ एंट्रीज इनवैलिड होंगी। तो जब मैं बोलता हूं टीएलबी को फ्लश आउट करना पड़ेगा, तो धुलाई थोड़ी करनी है इसको पाइप लेकर के कि धो दिया, नहीं, फ्लश आउट करने का मतलब इसकी जितनी भी सारी एंट्रीज हैं इन सबको इनवैलिडेट करना पड़ेगा, तो टीएलबी में एक बिट होगी वैलिड इनवैलिड बिट, जब एक एक्स्ट्रा बिट मेंटेन करूंगा टीएलबी के अंदर वैलिड इनवैलिड बिट, जब इसकी वैल्यू 0 होगी इसका मतलब ये वाली लाइन पे जो भी एंट्री रखी हुई है वो इनवैलिड है, और अगर 1 है इसका मतलब इस वाली लाइन पर जो भी एंट्री रखी हुई है वो वैलिड है। समझ गए बात को? तो अगर मैं बोलता हूं टीएलबी को फ्लश आउट करना है, इसका मतलब इसकी सारी की सारी सेल्स के करस्पॉन्डिंग जो वैलिड इनवैलिड बिट है उसको 0 कर देना है कि नन ऑफ दिस एंट्रीज आर वैलिड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर आप वापस से कोई नई एंट्री डालोगे तो इस वैलिड बिट को 1 कर देना और वो यूज होती चली जाएंगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिजिकल एड्रेस ही ऑब्टेन करना है लॉजिकल एड्रेस से, और कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है। टीएलबी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ये समझ में आया कि क्यों टीएलबी इंट्रोड्यूस की गई, कैसे काम कर रही है और कैसे इंफॉर्मेशन टीएलबी के अंदर आएगी। ठीक है, हाँ, एक चीज जो मैं बोल रहा हूं कि अभी के लिए भूल जाओ, सिर्फ ये मानो कि टीएलबी एक स्पेसिफिक मेमोरी है जिसके अंदर सर्च ऑपरेशन बहुत स्पीड से परफॉर्म किए जा सकते हैं, बस इतना समझो। क्यों बहुत स्पीड से परफॉर्म किए जा सकते हैं? क्योंकि ये एसोसिएटिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करता है, जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स में पैरेलली सर्च परफॉर्म होगी। जैसे जैसे सर्च प्रोसीड होती चली जाएगी, वो सेल्स जिनके अंदर सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू करना है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, और आपको फाइनली वो सेल ऑफ टीएलबी मिल जाएगी जो उस एंट्री को कंटेन करती है जिसके अंदर आपके पेज नंबर की इंफॉर्मेशन रखी हुई है। इफ एट ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द टीएलबी हिट, तो जाकर के फ्रेम नंबर, तो उस टीएलबी की उस एंट्री से आपको पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर मिलेगा, उसको मिला करके उसको आपके लॉजिकल एड्रेस में जो ऑफसेट था उसके साथ मिला करके फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लो। अगर यहां पर मिस हो जाता है तो फिर कोई और तरीका नहीं है, आपको पेज टेबल को एक्सेस करना ही पड़ेगा। नहीं रुचि, टीएलबी की साइज फिक्स नहीं होती, बट जनरली इट्स अ स्मॉल साइज्ड कैशे, इट इज अ स्मॉल साइज्ड कैशे। तो वो टीएलबी की साइज के बारे में बात नहीं करते, टीएलबी की साइज का यूज तब होगा जब मैं सेट एसोसिएटिव या फिर डायरेक्ट मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करने की कोशिश करूंगा। साइज का सिग्निफिकेंस तब है, समझे ना, साइज का सिग्निफिकेंस तब है जब मैं सेट एसोसिएटिव या डायरेक्ट मैपिंग के तरीके से बात करूंगा। अभी मैं सर्चिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा कि सर्चिंग होगी कैसे। तो अगर सर्चिंग होगी कैसे वाले में बात करूं तो इस टीएलबी के अंदर कितनी एंट्रीज रखी जा सकती हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पर अभी इस बारे में कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इन सारी चीजों से कि सर साइज क्या होगी टीएलबी की। ऑब्वियसली आपकी जो टीएलबी है उसकी साइज फिक्स होगी, आपकी जो टीएलबी है उसकी साइज विद इन दी प्रोसेसर टीएलबी की साइज हैज टू बी फिक्स। ऐसा थोड़ी ना है कि इस प्रोसेस के लिए इतनी बड़ी टीएलबी ले ली, अगली प्रोसेस के लिए किसी दूसरी साइज की टीएलबी ले ली, नहीं, ये एक हार्डवेयर है, सो विद इन दी सिस्टम दी साइज ऑफ टीएलबी विल बी फिक्स्ड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हर प्रोसेसर में 1 किलोबाइट की टीएलबी होनी चाहिए या हर प्रोसेसर में 1 मेगाबाइट की टीएलबी होनी चाहिए, नहीं, वो तो प्रोसेसर डिजाइनर की चॉइस है ना। चलो, तो अगर आपको अल्टीमेटली आपके इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करना है, अगर आपको इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को क्लोजर टू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम लेकर के आना है रादर देन 2 टाइम्स ऑफ द मेमोरी एक्सेस टाइम, तो 2 चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। क्या? एक तो आपके टीएलबी का हिट रेट इंक्रीज होना चाहिए, और दूसरा टीएलबी का जो एक्सेस टाइम है वो रिड्यूस होना चाहिए। तो जितनी ज्यादा फास्ट टीएलबी होगी और जितना ज्यादा उसका अच्छा हिट रेट होगा, उतना ही ज्यादा आपकी
सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अब ये देखो, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे जैसे मैं साइज बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं साइज इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं साइज को इंक्रीज करूंगा, तो आपका जो हिट रेट है वो इंक्रीज होगा। अगर जैसे जैसे मैं साइज इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे हिट रेट इंक्रीज होगा। लेकिन क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है, इसलिए आपका जो एक्सेस टाइम है वो भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब स्पीड जो है आपकी कैशे की और टीएलबी की, वो रिड्यूस होगी। तो अगर साइज इंक्रीज करूंगा, अगर साइज इंक्रीज करूंगा तो हिट रेट इंक्रीज होगा लेकिन स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। अगर मैं साइज को डिक्रीज करूंगा, साइज को डिक्रीज करूंगा तो क्योंकि कम नंबर ऑफ, अगर साइज डिक्रीज हो गई इसका मतलब कम पेज की इंफॉर्मेशन को टीएलबी में रखा जा सकता है, तो मैक्सिमम पेजेस की इंफॉर्मेशन टीएलबी में मिस होगी। अगर ऐसा है तो आपका जो हिट रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि साइज कम है इसलिए आप उस वाली कैशे को फास्ट बना सकते हो, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ। इन दोनों में से आप किसी एक ही चीज को इंक्रीज कर सकते हो, दूसरी चीज जब एक को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में भागेगी, है ना। So sir, during the first value introduced in the TLB, at that time accessing time will be for a page is 2m. अब अनीश मुझसे ये पूछ रहा है कि सर ड्यूरिंग द फर्स्ट वैल्यू इंट्रोड्यूस इन दी टीएलबी, इसका मतलब जो आप पहली बार टीएलबी के अंदर कोई एंट्री करने जाओगे, एट दैट टाइम एक्सेसिंग टाइम विल बी फॉर अ, विल बी बोलो मत, एक तो तुमने कंफ्यूज कर दिया। विल बी फॉर अ पेज इज, और एक्सेसिंग टाइम फॉर अ पेज इज 2m और लेस, इट विल बी मोर, इट विल बी मोर। आप तो उसको 2m से लेस की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं और ज्यादा होगा। सुनना, जब मैं पहली बार किसी एंट्री के लिए जाऊंगा, जब मैं पहली बार टीएलबी के अंदर सर्च करूंगा तो उसका टाइम 2m नहीं होगा। जब मैं पहली बार एंट्री के लिए, जब मैं पहली बार टीएलबी को एक्सेस करूंगा तो वो गारंटीड है कि मिस होगा। जब मैं पहली बार टीएलबी को एक्सेस करूंगा तो गारंटीड है कि वो मिस होगा, क्योंकि अभी तक तो कोई एंट्री टीएलबी में डली ही नहीं है। इसका मतलब सी टाइम में आपको पता चलेगा कि वो मिस है, और उसके बाद आपको 2m टाइम लगेगा, उसके बाद आपको 2m टाइम लगेगा उसको एक्सेस करने में। इसका मतलब कभी भी जब प्रोसेस पहली बार सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी तो उसको पहली एक्सेस में जो टाइम लगेगा वो C+2m लगेगा। तो जनरली हम चाहते थे कि 2m से कम हो जाए, लेकिन ये तो 2m से भी ज्यादा है। लेकिन ओवर दी पीरियड जैसे जैसे आपकी एंट्रीज टीएलबी में आती चली जाएंगी, ओवर दी पीरियड जैसे जैसे आपकी एंट्रीज टीएलबी में आती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपका जो एक्सेस टाइम है, आपका जो हिट रेट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि मोर एंड मोर entries will be available in the TLB itself, and in that case most of the time you will be able to get the information about physical address from the TLB itself, and that means one memory access will be reduced for the following operations, right? So that's the idea कि यहाँ पर ये छोटी सी चीज है कि जब आप पहली बार एक्सेस करने जाओगे तब इतना टाइम लगेगा, जैसे जैसे आपकी टीएलबी में एंट्री आती चली जाएंगी वैसे वैसे इस एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे इस एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका जो C+m है वो आपको इफेक्टिवली टाइम लगना शुरू हो जाएगा रादर देन C+2m। क्लियर? TLB size may differ. Yes, obviously TLB size may differ from based on the processor to processor. चलो हो गया, डन, बहुत हो गया। टीएलबी वीएलबी सबको समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ, हमको पेजिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है कि पेजिंग का यूज करके हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम विद द सिंपल पेजिंग इज, द प्रॉब्लम विद द पेजिंग इज, द प्रॉब्लम विद द पेजिंग इज कि अगर पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं बिना टीएलबी के तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। उसको रिड्यूस करने के लिए टीएलबी लगा दी। टीएलबी का आधा डिस्कशन हुआ है, उतना ही सफिशिएंट है फ्रॉम दी गेट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी और ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डिस्कशन में जाओगे तो मैं आपके और 2-3 घंटे खराब कर दूंगा, सिखा दूंगा, लेकिन गेट में नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि क्या सच में पेजिंग का कॉन्सेप्ट जैसा हमने सोचा है उस तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। एक सिंपल तरीके की बात करता हूँ। क्या हुआ,
सबसे पहली सिचुएशन में ये हुआ कि एक सिंपल पेजिंग है, इसका मतलब आपकी ये पेज टेबल है। सुनना, जो पूछ रहा हूं सिर्फ उतना बताओ। आपका सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस के बेसिस पे पेज टेबल को एक्सेस करना है। नाउ क्या ये जरूरी है, सुनो अच्छे से, क्या ये जरूरी है कि पेज टेबल को पूरा का पूरा मेमोरी में हमेशा कंटिन्यूअसली स्टोर कराना पड़े? इस वाली सिचुएशन में क्या ये जरूरी है कि पेज टेबल मेमोरी के अंदर हमेशा कंटिन्यूअसली स्टोर्ड हो? ये जो गिवन सिचुएशन है, इस गिवन सिचुएशन में क्या ये जरूरी है कि पेज टेबल मेन मेमोरी में हमेशा कंटिन्यूअसली स्टोर्ड हो? तनुजा, गुलाम, सोचो, सुनना बात को, सिंपल सी कहानी है ना। आपकी जो पेज नंबर है, इन पेज नंबर के बेसिस पे ये पेज टेबल इंडेक्स्ड है। आपके पेज नंबर के बेसिस पे पेज टेबल इंडेक्स्ड है। इसका मतलब दी zero, I mean the first entry will represent the page number 0, the second entry will represent the page number 1, the second next entry will represent the information about page number 2 and so on. तो अगर मैं किसी पेज नंबर P की इंफॉर्मेशन चाहता हूं, अगर मैं किसी पेज नंबर P की इंफॉर्मेशन चाहता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ तब जब ये पेज टेबल कंटिन्यूअसली मेमोरी में स्टोर्ड है, सिर्फ और सिर्फ तब जब ये पेज टेबल कंटिन्यूअसली मेमोरी में स्टोर्ड है, तभी मैं बोल पाऊंगा कि इसका जो बेस एड्रेस है जो कहाँ स्टोर्ड है, ये बेस एड्रेस जो पेज टेबल बफर रजिस्टर में स्टोर्ड है, उस एड्रेस से अगर मैं पी सेल दैट इज 0 to P-1, अगर मैं एड्रेस P-1 की बात कर रहा हूं, अगर मैं एड्रेस ऑफ पेज नंबर P की बात कर रहा हूं, तो समझना, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता, तो मुझे कैसे पता चलता कि जो पेज नंबर P की इंफॉर्मेशन पेज टेबल में स्टोर्ड है, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि पेज नंबर P की इंफॉर्मेशन जो पेज टेबल में स्टोर्ड है वो किस फिजिकल एड्रेस पे स्टोर्ड है? ये भी तो मेमोरी का एक एड्रेस ही है ना, ये भी तो मेमोरी का एक एड्रेस ही है। सो द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल कि आपकी जो पेज टेबल है वो मेमोरी में कंटिन्यूअसली स्टोर होनी चाहिए, अगर ये सिंपल पेज टेबल है तो। अगर ये सिंपल एक सिंगल पेज टेबल है और इसके बेसिस पे आप इस तरीके से स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी पेज टेबल मेमोरी में कंटिन्यूअसली स्टोर होनी चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से ये होगा कि अगर आप किसी पेज नंबर P का एड्रेस चाहते हो, अगर आप पेज नंबर P के लिए चाहते हो कि पेज नंबर P, अगर आप चाहते हो कि पेज नंबर P मेन मेमोरी के किस फ्रेम में अवेलेबल है, तो आप इस मेमोरी के अंदर पेज नंबर P की इंफॉर्मेशन को सीधे सीधे एक्सेस कर सकते हो। ये मेन मेमोरी जरूर है, लेकिन इस मेन मेमोरी में अगर सर्चिंग करने लगूंगा तो सर्चिंग का टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा ना, सर्चिंग करने लगूंगा तो सर्चिंग का टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो मैं पेज नंबर P की इंफॉर्मेशन मुझे किस एड्रेस पर मिलेगी? पेज नंबर P की इंफॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों बेस एड्रेस, जो भी इस पेज टेबल का स्टोर होने का स्टार्टिंग एड्रेस है। लेट्स एज्यूम कि ये 1000 से स्टोर होना शुरू होता है, लेट्स एज्यूम कि ये 1000 से स्टोर होना शुरू होता है। इस पेज नंबर P से पहले देयर आर P एंट्रीज, 0 to P-1 एंट्रीज हैं, इसका मतलब P एंट्रीज हैं। तो पेज नंबर P की एंट्री से पहले, पेज नंबर P की एंट्री से पहले देयर आर P एंट्रीज। Let's assume that each entry is of E byte. Let's assume each entry is of E byte. Therefore, अगर ये एड्रेस 100 है, अगर ये वाला एड्रेस 100 है, तो ये वाला जो एड्रेस होगा ये कितना होगा? 100, और उससे कितना आगे? P entries each of E byte. So P entries each of E byte. तो अगर मैं सीधे सीधे ये एड्रेस कैलकुलेट करूंगा तो 100 प्लस P इंटू E, अगर मैं सीधे सीधे एड्रेस कैलकुलेट करूंगा तो 100 प्लस P इंटू E, तो इस चीज से मुझे पता चल जाएगा बेस एड्रेस प्लस P इंटू E, वेर E इज द साइज ऑफ ईच एंट्री।
This will be the physical address. This will be the physical address at which the information about page P is available in the main memory. This is the physical address at which the information about page P is available in the मेन मेमोरी. इसका मतलब आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा. अगर आप पेज पी की इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो तो सीधे सीधे इस एड्रेस पर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो पेज पी का फ्रेम नंबर देगी. हाँ या ना? लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस स्टोर नहीं होता, अगर ये कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं होता तो फिर ये काम नहीं करता. अगर ये कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं होता तो फिर ये काम नहीं करता. इसका मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाता. आप जो सोच रहे हो इतनी देर से ऐसा हो ही नहीं पाता. है ना? इसका मतलब पेज टेबल्स मस्ट बी स्टोर्ड कंटिन्यूअसली इन द मेन मेमोरी as the information about the page number are indexed in the page table, are indexed with respect to page number.